एवरीवन, कैसे हो आप लोग। हम बात कर रहे थे जैनिज़्म में टाइप्स ऑफ नॉलेजेस के बारे में। हमने 5 तरह की नॉलेज डिस्कस की थी इससे पहले वीडियो में, जिसमें हमने मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये सारे डिस्कस किए थे। हमने डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज़्म देखी, जिसमें हमने बात किया कि जैनिज़्म में 3 जेम्स होते हैं जैनिज़्म के, जिन्हें त्रिरत्न कहा जाता है। और हमने देखा कि 5 महाव्रत भी होते हैं, 5 वोज हैं जैनिज़्म में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी जो जैनिज़्म में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रही है, जो है थ्योरी ऑफ स्यादवाद। ठीक है, तो इस थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। इस थ्योरी को पहले हम इंग्लिश में देखेंगे, फिर इसे हिंदी में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल इन इंग्लिश। सो स्यादवाद, दैट इज़ द थ्योरी ऑफ मे बी और द थ्योरी ऑफ perhaps also means maybe. So theory of maybe or theory of Syadavad is, in this theory it is said that all our judgments are necessarily relative, conditional and limited. That is, whatever you judge, it is based on some conditions. On the basis of these conditions, your judgment can be correct or not correct, can be affirmative, can be negative, on the basis of those conditions. So on the basis of those conditions, when you are saying that, it means it is relative to that condition, it means it is based on these conditions. According to Sayadavad, 7 modes of prediction are possible. So in everything there are 7 modes of prediction. So anything can go in 7 modes, which is also known as Saptabhangi Nayavad. Saptabhangi Nayavad, which means in everything there are 7 different modes of prediction. In everything you can predict something in 7 different ways. So Saptabhangi Nayavad, 7 new ways can occur from one different way. From one way, 7 different routes can go, right? And also in Jainism, it is in the theory of Syadavad, it is said that absolute affirmation and absolute negation both are wrong. So you cannot say in any condition that this condition is absolutely affirmative or absolutely negative. So everything lies between absolute affirmation and absolute negation. So anything which is there is between these two things, but cannot be equal to these two things. So in everything, nothing can be absolutely affirmative or nothing can be absolutely negative. And again, this thing is based on the concept that all judgments are conditional. So there are conditions on the basis of which something is negative or affirmative, but on the basis of some other conditions, the same thing which was affirmative on the basis of condition 1, this can be negative on the basis of condition 2. So everything is conditional, all judgments are conditional. Syadavad is also known as Anekantavad. Syadavad is also known as Anekantavad, which means this is based on the theory of plurality. Anekantavad is also said to be the theory of plurality, which means multi-sidedness. Means plurality means in everything there are many sides of it, many plural. So the word plural says itself that in everything there are many sides of a thing. So Syadavad is the theory which is also known as Anekantvad. So in Jainism, everything, it is believed that everything goes according to the theory of plurality. Means in everything there are multiple sides of that thing. There are multi-sidedness of everything in Jainism, it is believed. So इन्हीं बातों का अब हिंदी में डिस्कस करते हैं. सो थ्योरी ऑफ जो सियादवाद का कंसेप्ट है, उसमें कहा जाता है कि जो हमारी जजमेंट्स हैं वो नेसेसरली रिलेटिव होती हैं. किसी भी चीज़ के रिलेटिव होती हैं. रिलेटिव मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ है वो एक चीज़ के संबंध में, ठीक है, दूसरी चीज़ अगर आप कोई भी चीज़ लोगे तो दूसरी चीज़ के कंपैरिजन में ली जाएगी. मतलब अगर एक चीज़ करेक्ट है तो तभी हम दूसरी चीज़ को रॉन्ग कहेंगे. पर हो सकता है कि कोई और चीज़ हो, ठीक है, जिसके कंपैरिजन में ये जो चीज़ थी, दूसरे नंबर वाली चीज़ थी, वो ज़्यादा करेक्ट हो. ठीक है, चाहे वो पहली चीज़ के अकॉर्डिंगली इनकरेक्ट है या रॉन्ग है, सही नहीं है, पर दूसरी चीज़ को तीसरी चीज़ को अगर आप कंसिडर कर रहे हो तो उसके हिसाब से हो सकता है कि वो चीज़ सही हो. ठीक है ना, ज़्यादा गलत ना हो. तो मतलब हर एक चीज़ जो है वो रिलेटिव होती है, कंडीशनल होती है. मतलब कुछ कंडीशंस पे बेस्ड होती है. अगर वो कंडीशन के अकॉर्डिंग है तो एक कंडीशन
अगर एक कंडीशन के अकॉर्डिंग वो चीज़ सही है या अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, तो हो सकता है कोई और कंडीशन है जिसके अकॉर्डिंग वो चीज़ नेगेटिव हो, सही ना हो। ठीक है, तो हर एक चीज़ रिलेटिव होती है, कंडीशनल होती है और लिमिटेड होती है, कुछ चीज़ों पे बेस्ड होती है। ठीक है, सियादवाद के कंसेप्ट में कहा जाता है कि 7 तरह की आप एक चीज़ से 7 तरह की प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स 7 रास्ते निकल सकते हैं, जिससे सप्तभंगी न्यायवाद कहा जाता है। सप्तभंगी न्यायवाद भी कहा जाता है। मीन्स हर एक चीज़ में आगे 7 रास्ते निकल सकते हैं, तो 7 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, प्रिडिक्शंस होती हैं, 7 मोड्स होते हैं प्रिडिक्शन के हर एक चीज़ में। कहा जाता है सियादवाद की थ्योरी में कि एब्सोल्युटली कोई भी चीज़ सही या एब्सोल्युटली कोई भी चीज़ गलत नहीं होती। ठीक है, अगर आप किसी चीज़ में कह रहे हैं कि चीज़ बिल्कुल सही है या ये चीज़ बिल्कुल गलत है, ये दोनों चीज़ें गलत हैं। हर एक चीज़ जो होती है वो इन दोनों के बीच लाई करती है। ठीक है, तो मतलब यहाँ बीच में कुछ भी हो सकते हैं, पर एब्सोल्यूट वाली कंडीशन पे आप नहीं पहुंच सकते। मतलब हर एक चीज़ हमेशा सही नहीं होगी, हर एक चीज़ बिल्कुल गलत नहीं होगी। कोई इंसान है, एक इंसान के साथ आप कंपैरिजन करके चलिए। ठीक है, तो आप कभी मान सकते हैं कि हाँ ये इंसान आपके साथ गलत कर रहा है, तो पर हो सकता है कि उसके अलग कंडीशंस हो। ठीक है ना, तो वो उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो जो कर रहा है वो उसके लिए सही हो। ठीक है, या किसी और के लिए सही हो। तो मतलब आप एब्सोल्युटली ये नहीं कह सकते कि वो इंसान गलत है, कंडीशंस कुछ ऐसी होंगी। ठीक है, तो कंडीशनल बेसिस हो गया ना। आपके लिए कोई चीज़ गलत है, मान लीजिए आपके लिए कोई चीज़ बेनिफिट नहीं दे रही, पर हो सकता है कि वो चीज़ किसी और के लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है ना, तो इसलिए कहा जाता है कि एब्सोल्युटली कोई भी चीज़ अफर्मेटिव या एब्सोल्युटली नेगेटिव भी नहीं होती। मतलब बिल्कुल पॉजिटिव या बिल्कुल नेगेटिव नहीं होती। एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं है, हमेशा रिलेटिव है सब कुछ। ठीक है, तो ऑल जजमेंट्स जो है वो कंडीशनल हैं। क्या कंडीशन गिवन है उसके ऊपर बेस होएगी कि आप क्या जज कर रहे हो उस कंडीशन में। ठीक है, तो आपकी जजमेंट बेस्ड होती है कंडीशंस पे। एक कंडीशन के अकॉर्डिंग आपकी जजमेंट वो सही हो सकती है, वो चीज़ वो गलत भी हो सकती है। ठीक है, सियादवाद को हम अनेकांतवाद भी कहते हैं। ठीक है, अनेकांतवाद भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सियादवाद की थ्योरी में कहा जाता है कि हर एक चीज़ की प्लूरैलिटी, इट इज़ अ थ्योरी ऑफ प्लूरैलिटी, विच मीन्स कि हर एक चीज़ में मल्टीपल साइड्स होते हैं। प्लूरल वर्ड का मतलब क्या होता है कि एक से ज़्यादा। ठीक है, तो उसी तरह सियादवाद में कहा जाता है कि हर एक चीज़ में मल्टीपल साइड्स होती हैं, हर एक चीज़ के कई पहलू होते हैं। तो जैनिज़्म में सियादवाद की थ्योरी पे में अनेकांतवाद में माना जाता है। मतलब हर एक चीज़ में अनेक चीज़ें हो सकती हैं, अनेक उसके फेजेस हो सकते हैं, अनेक साइड्स हो सकती हैं एक ही चीज़ की। ठीक है, तो ये है कंसेप्ट सियादवाद का। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।